Hello everyone. Today we are going to start the next topic of this chapter, trigonometry, that is trigonometric identities. Till now we have done the meaning of t ratios. The first, what is sine, cos, tan, cosecant, secant, cot. For that we have done one mnemonics to learn these t ratios. Pandit Badri Prasad har bole, that you know. Second was t ratios of some specific angles. There we have made the table to learn the values of different 5 angles, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. And the third topic was t ratios of complementary angles. Right? In a right angle triangle, the two acute angles are complementary because their sum is 90 degree. Right? And now the last topic of this chapter, that is trigonometric identities. Like in the previous class you have done algebraic identities. In this we are going to do trigonometric identities. Now there is a proof of trigonometric identities also. We are going to prove these identities. ठीक है, प्रूफ के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आइडेंटिटीज हैं क्या क्या. The very first thing let's take a right angle triangle because t ratios means we have to take a right angle triangle. ठीक है, उसमें एक एंगल मार्क कर लेना है, acute angle थीटा मैंने इसमें ले लिया है, एंगल A. So triangle ABC is right angled at B. Angle A I have taken theta. If angle A is theta, then you know perpendicular is BC, base is AB. ठीक है, अब see what I'm going to do. I'm going to simply apply Pythagoras theorem in this triangle. ठीक है, इसमें Pythagoras theorem अप्लाई करनी है. Now by using Pythagoras theorem, what is that? BC square plus AB square, what is that equal to? AC square. ठीक है, this is simply a Pythagoras theorem. ठीक, hypotenuse square is equal to sum of the squares of other two sides. That is what Pythagoras theorem states. Right? अब see what I do, dividing both sides by AC square. AC square से डिवाइड करता हूँ दोनों साइड को. लेट्स सी व्हाट वी गेट. ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं हमें मिलता क्या है. ईच एंड एवरी टर्म ऑन बोथ साइड, BC स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ईच एंड एवरी टर्म ऑन बोथ साइड्स गेट्स डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर. ठीक है, अब देखना व्हाट आई डू, दिस इज BC ओवर AC स्क्वायर होल स्क्वायर में लिख दो इसको, BC ओवर AC स्क्वायर प्लस AB ओवर AC स्क्वायर, AC ओवर AC ये कट ही गया, दैट इज इक्वल टू 1. ठीक हो गया. आप ध्यान से देखना प्लीज, BC ओवर AC फॉर एन एंगल थीटा, BC इज perpendicular and AC is hypotenuse. What is perpendicular over hypotenuse? What that ratio is called? That is sine. So it is sine theta square. ठीक है, plus AB over AC. AB for an angle theta, AB is base. This is hypotenuse. Base over hypotenuse. What is that? Cos equals to 1. And in trigonometry, you know how this ratio is written as. It is written as sine square theta plus cos square theta, that is equal to 1. This is the first trigonometric identity we are having in trigonometry. Sine square theta plus cos square theta equals to 1. ये फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ हुआ. वेरी इजी. पाइथागोरस थ्योरम लगाई, जो AC स्क्वायर था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, उससे दोनों साइड को डिवाइड कर दिया एंड वी गेट द फर्स्ट आइडेंटिटी. Identity is that which is true for all values. So that means ये एक आइडेंटिटी है, means थीटा की जो मर्जी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाए, it's always gives us answer 1. That is an identity. ठीक है. सेकेंड वे इसका, 2-3 वे से आगे चल सकते हैं हम. एक तो जैसे एक में AC स्क्वायर से डिवाइड किया, एक में AB से कर लो, एक में BC स्क्वायर से कर लो. दूसरा एक चीज़ ध्यान रखना,
हमने पहले भी किया था, व्हाट tan थीटा कैन बी रिटन एज, tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा ओवर cos थीटा, tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा ओवर cos थीटा, प्रूव भी किया था हमने। सो इफ tan थीटा इज sin ओवर cos, यू नो व्हाट इज cot थीटा, cot इसका रेसिप्रोकल होता है, तो व्हाट इज दिस, cos ओवर sin, ठीक है। और रेसिप्रोकल्स का भी ध्यान रखना, बाकी cos सेकेंड थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है तो कैन बी रिटन एज 1 ओवर साइन, एंड सेकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो कैन बी रिटन एज 1 ओवर कॉस। ये चीज़ें हमेशा अपने माइंड में रखनी है आपने ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चंस करते टाइम। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हो गई है, ठीक है। अब देखना व्हाट आई डू, यहीं से मैं बाकी दो निकाल दूंगा, यहीं से, इसी में से निकल जाएंगी बाकी दोनों। इसमें लेट्स डिवाइड बोथ साइड बाय cos स्क्वायर थीटा, dividing both sides by cos स्क्वायर थीटा। रिमेंबर 3 वेज थे इसको करने के, एक AC स्क्वायर से डिवाइड करना वो मैंने किया, एक केस में AB स्क्वायर से डिवाइड कर सकते थे, एक में BC स्क्वायर से, ऐसे 3 आइडेंटिटीज मिल जाती हैं। मैंने फर्स्ट बनाई, मैं फर्स्ट से ही सेकंड बना देता हूँ, ठीक है, इजीली वो भी बन जाता है, वो देख लेना आपने। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर थीटा, देन ईच एंड एवरी टर्म gets divided by cos square theta, 1 over cos square theta. What is sin over cos? Sin over cos tan, so tan square theta बन गया प्लस cos square theta over cos square theta cancels, what we get 1 over cos क्या होता है, 1 over cos is secant, तो 1 ओवर cos स्क्वायर है तो ये सेकेंड स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है। ऑलमोस्ट देयर, इसको भी ले सकते हैं, बट सी हाउ डू आई राइट दिस, आई विल राइट सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस, इसी को रीअरेंज कर रहा हूँ, बाकी मीनिंग यही है इसका, ये बन गया tan स्क्वायर थीटा को यू कैन से उधर ले गए, सो व्हाट वी गेट सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, व्हाट इज दैट इक्वल टू 1। दिस इज द सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। फर्स्ट साइन कॉस में थी, सेकंड सेकेंड एंड tan में है, एंड नाउ देयर आर टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रिमेंबर। एक फर्स्ट वे मैंने बताया था, ये सेकंड वे से आपको प्रूव करना बता रहा हूँ। जब मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करी this one, तो व्हाट आई हैव डन, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर थीटा, वहाँ से मुझे सेकंड मिल गई, इसी को किससे डिवाइड किया था मैंने, cos स्क्वायर थीटा से। नाउ लेट अस डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय नाउ sin स्क्वायर थीटा। साइन और cos से डिवाइड करना होता है, बस इतना ध्यान रखना, बाकी नहीं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ 1 बाय, पहले किया था cos स्क्वायर से, अब कर रहा हूं sin स्क्वायर से, इसी को ईच टर्म गेट्स डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन ओवर साइन कट जाएगा, 1 प्लस कॉस ओवर साइन, कॉस ओवर साइन तो कॉट होता है, स्क्वायर है साथ में तो इट इज कॉट स्क्वायर थीटा। 1 ओवर साइन इज कॉसिकेंट, तो 1 ओवर साइन स्क्वायर इट इज कॉसिकेंट स्क्वायर। सो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं, सो दिस इंप्लाइज cosecant square theta minus cot square theta equals to 1. This is the third trigonometric identities, ठीक है। ये टोटल 3 trigonometric identities हैं, मैं अब इनको इकट्ठा करके लिखता हूँ तीनों को, फिर थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे और फिर आगे चलेंगे हम इसके। फर्स्ट आइडेंटिटी हमने कौन सी प्रूव करी थी, ये प्रूफ है, इनके ध्यान रखना, एग्जाम में प्रूव करने के लिए आता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड वी हैव डन secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड थर्ड वी हैव डन cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी हमने प्रूव करी। एग्जाम में जब प्रूव करने को आएगी ना अगर आपको, तो एक ही आती है, ध्यान रखना। आउट ऑफ दीज 3 only one will be asked to prove,
ठीक है, अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कि क्या क्या हमें बता रही हैं, ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रही हैं। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़? 3। नाउ सिमिलैरिटीज़ ढूंढें इनमें। तीनों आइडेंटिटीज़ में राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 1। हम सिमिलैरिटीज़ ले रहे हैं, क्या क्या है इसमें। तीनों में राइट हैंड साइड इक्वल टू 1, मतलब तीनों में वैल्यू 1 के इक्वल ही आती है। अब टोटल हाउ मेनी टी रेशियोज वी आर हैविंग? 6। दो दो करके हैं। एक पहली पॉइंट इसमें जो हम इसको थोड़ा सा इसको देख रहे हैं क्या क्या है इसमें, स्पेशलिटीज़ देख रहे हैं। एक तो सब वैल्यूज़ 1 के इक्वल, दूसरा हर एक आइडेंटिटी में हाउ मेनी टी रेशियोज आर इन्वॉल्व्ड? 2 टी रेशियोज आर इन्वॉल्व्ड इन ईच आइडेंटिटी। ठीक है, फर्स्ट में विच आर इन्वॉल्व्ड? साइन एंड कॉस, सेकेंड में सीकेंट एंड टैन, थर्ड में कॉसिकेंट एंड कॉट। ठीक, सेकेंड पॉइंट फर्स्ट था राइट साइड सबकी 1 के इक्वल है। सेकेंड, ईच दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कंटेन्स 2 टी रेशियोज। Thirdly, what is something special about this? थर्ड पॉइंट जो हमने इसमें से निकालना है, यहाँ पे हर एक टी रेशियोज सिंपल टी रेशियोज की फॉर्म में नहीं है, वो स्क्वायर्स की फॉर्म में है। ऑल टी रेशियोज आर विद स्क्वायर्स। तीसरा पॉइंट जो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज ईच टी रेशियो इज विद स्क्वायर। लीनियर फॉर्म में नहीं है कोई, स्क्वायर से आगे क्यूब पावर 4 की फॉर्म में नहीं, सिर्फ स्क्वायर्स की फॉर्म में है। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट, कौन कौन सी टी रेशियोज में आपस में लिंक्ड है आइडेंटिटी में? पहले में है साइन एंड कॉस में रिलेशन है आपस में, साइन एंड कॉस आर रिलेटेड। सेकेंड में सीकेंट एंड टैन आर रिलेटेड। थर्ड में कॉसिकेंट एंड कॉट आर रिलेटेड। ठीक है, किन किन में आ गई? साइन कॉस फर्स्ट, सेकेंड सीकेंट एंड टैन, एंड थर्ड कॉसिकेंट एंड कॉट। और दूसरी चीज़, साइन कॉस वाली में बीच में प्लस आता है और बाकी देख लो दोनों में माइनस आता है। ठीक है, साइन एंड कॉस में प्लस आएगा, दोनों के बीच में कनेक्टर साइन जो है वो प्लस का है। सीकेंट एंड टैन में माइनस का है। प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख लो, बात बन जाएगी। लेकिन माइनस अगर है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ही लिखा जाएगा। आप टैन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे -1 आ जाता है। ठीक है, सो पहले क्या आएगा माइनस में उसका ध्यान रखना है। प्लस में तो आप साइन कॉस जो मर्जी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड थर्ड कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में जो हमने ऑब्जर्व करने थे। तो इनको बड़े ध्यान से देखना है आपने, किन किन दो रेशियोज़ के बीच में हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हम इसमें निकाल के ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि क्या क्या स्पेशल है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, द फोर्थ टॉपिक। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इन्वॉल्व होने वाली हैं। ठीक है, बीच में कॉम्प्लीमेंट्री भी आने वाले हैं, बीच में वैल्यूज़ वाले भी आने वाले हैं, तो यहाँ सारी चीज़ें अब इन्वॉल्व होने वाली हैं। सबसे मेन टॉपिक है ये ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से करना है आपने। राइट, थैंक यू।